हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय द राइटर G.L. फ्यूंटस। जैसा कि चैप्टर के नेम से सीधे पता चल रहा है कि यहाँ एक लेटर यानी पत्र भगवान को लिखा जा रहा है। इस चैप्टर में एक किसान के बारे में बताया गया है जो बहुत ही ईमानदार है और अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है, जिसका नाम है लेंचो। लेंचो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है और उसका भगवान में बहुत विश्वास है, इसीलिए वह भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और भगवान से पैसों की मांग करता है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि उसको पैसे मिलते हैं या नहीं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, लेंचो का जो घर था वो वैली में अकेला था और सबसे ऊंचे हिल पे था, जहाँ से सारी नदियाँ और जो राइप कॉर्न की जो फील्ड्स होती थी वो अच्छे से देख सकते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जो अर्थ को ज़रूरत थी जिस चीज़ की वो थी बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied. कुछ औरतों ने कहा कि आज हमें लग रहा है बारिश होने वाली है। Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. The older boys, जो बड़े हुए लड़के थे वो फील्ड्स में काम कर रहे थे और छोटे खेल रहे थे जब तक उनकी माँ उन्हें शाम के खाने के लिए बुलाती नहीं थी। तभी लंचो देखता है कि बड़ी बड़ी बूंदें बारिश के पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा चल रही थी वो बिल्कुल ताज़ी चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "They aren't raindrops falling from this kid. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5." When Lencho came back from the fields, then he is telling that the big drops are like 10 cent pieces and the small drops are like 5 cent pieces. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls with a satisfied. जो लंचो था वो फिर बाद में बोलता है कि हमें तो लग रहा है कि बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर बाद में बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, उसी के साथ पत्थर गिरने लगते हैं और कुछ जो बॉयज़ होते हैं वो पत्थर लेने से बाहर जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। फिर लंचो कहता है कि अब तो और भी बुरा होने वाला है। आई होप इट passes quickly. It does not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लगभग बारिश 1 घंटे तक होती रही पत्थरों के साथ। फिर बाद में बारिश ख़त्म होने के बाद लंचो ने देखा तो हर जगह गार्डन में, खेतों में, फील्ड्स पे हर जगह पत्थर पड़े हुए थे, ऐसे कि लग रहा था कि हर जगह नमक पड़ा हुआ है। Not a leaf remained on the tree. किसी भी पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं बची थी। The corn was totally destroyed. जो कॉर्न थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. The flowers, जो प्लांट्स में फ्लावर्स थे वो भी सारे टूट चुके थे और लंचो का जो दिल था वो अपने दिल से कह रहा था कि इस बार तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा, इस बार कुछ बचा भी नहीं है।
लेकिन उस रात वो सोता भी नहीं है। लेकिन वो ये बात भी कहता है कि कोई भी भगवान कहते हैं कोई भी भूखा नहीं सोता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोल्टरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेंचो के पास एक होप, सिंगल होप बचा हुआ था, वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उस रात पूरी रात लेंचो सोता नहीं और वो यही सोचता है कि भगवान से मदद कैसे मांगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक बफेलो की तरह खेतों में दिन भर काम करता था, लेकिन उसको तभी भी इसको लिखना आता था, कैसे लेटर कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसी जो संडे आने वाला था उसी दिन उसने दोपहर में एक लेटर लिखा, फिर वो खुद ही अपने आप जाकर टाउन में वो मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। और वो लेटर, उस लेटर पर लिखा था अ लेटर टू गॉड। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उसने लिखा था, गॉड अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली इस बार भूखे भूखे मर जाएगी। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने उस पर यह भी लिखा कि हमें 100 पैसों की ज़रूरत है, उससे हम अपनी फील्ड में दोबारा बुआई कर सकते हैं, और जब तक फसल नहीं उगती है तब तक खाने के लिए पैसे चाहिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पे लिखा to God. Put the letter in. उसने लेटर जो मेल बॉक्स में लेटर डाला उस पर स्टैम्प लगा के मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उस वहाँ के एक एम्प्लॉय ने जब वो लेटर निकाला तो अपने पोस्ट ऑफिस मास्टर के पास दौड़ता हुआ गया और वो हंसने लगा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this, starting up a correspondence with God. जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत मोटा था और फ्रेंडली और प्लीजेंट भी था, और वो उसने जब लेटर पढ़ा तो वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुद ही सीरियस हो गया और उसने लेटर को डेस्क पे रखा और कमेंट किया, What faith? I wish I had the faith of the man. उसने बोला, What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting a correspondence with God. So in order not to shake the letter's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. So in order, और वो जो राइटर का फेथ था उसको कम नहीं करना चाहता था भगवान के प्रति, तभी उसने सोचा कि लेटर का आंसर दिया जाए। फिर उसने लेटर खोला, फिर उसने देखा जो लेटर में तो उसमें कुछ गुडविल नहीं चाहिए था, इंक एंड पेपर चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। फिर उसने देखा, फिर उसमें लिखा हुआ था कि जो लेंचो है उसको 100 पैसों की ज़रूरत है। फिर उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मदद मांगी। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. फिर उसने अपनी सैलरी का हाफ पार्ट दे दिया और अपने फ्रेंड से मदद मांगी। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer one a little more than half. फिर उसको It was impossible for him to gather together the 100 pesos. वो उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो एक साथ 100 पैसे कलेक्ट कर सके। Then he was able to send the farmer only a little more than half. फिर उसने आधे से ज़्यादा रुपए इकट्ठा करके उस लेटर में रख दिए। He put the money in an envelope addressed to Lencho. फिर उसने एनवेलप में रुपए रख दिए, फिर उसने एड्रेस पे डाल दिया, लेंचो का एड्रेस डाल दिया। एंड उसने साइन किया, गॉड के नाम से साइन किया।
The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. फिर अगले संडे को लंचो थोड़ा जल्दी आ गया और वो पूछने के लिए कि मेरा कोई लेटर है क्या. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. The following Sunday, Lancho came. Then फिर जिस पोस्टमैन ने इट वॉज द पोस्टमैन जो पोस्टमैन था उसने खुद लेटर उसको लंचो को दिया. और पोस्टमास्टर था वो वहाँ से एक्सपीरियंस कर रहा था कि लंचो क्या सोच रहा है. लंचो शोड नॉट द सिग्निफिकेंट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लंचो बहुत खुश हुआ मनी देखकर. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका यही कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने रुपए काउंट किए तो उसे गुस्सा आया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और वो कहता है कि भगवान ये गलती नहीं कर सकते हैं, ना ही वो लंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं. इमीडिएटली लंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत लंचो विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे लेटर लिखना फिर स्टार्ट करता है. Caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. फिर वो जब लेटर लिख लेता है तो विंडो पे जाता है, स्टैम्प लेके उस पर लगा देता है. With a blow of his fist, the moment the letter fall into the mailbox, the postmaster went to open it. जब वो मेल बॉक्स में डाल के चला जाता है तो पोस्टमास्टर जाता है और तुरंत खोलता है लेटर को. It said, God of the money that I asked for only 70 पैसे reached me. फिर उसने उस पर लिखा था कि गॉड जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे उसमें मुझे खाली 70 पैसे मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स. मुझे बहुत ज़रूरत है लेकिन मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के वो ठगों का एक टोला है. This chapter was written